Hello students, last time we learned about the application state management. Now I found that in that video that we have some kind of disturbance in application state management. So I am going to revise again the application state management and the example of the application state management. Okay, to remove the application variable we have to use the application.remove method. Remove method, in this particular method we have to give the name of the variable. Yes, here we give the name of the variable which we have to remove. And if we want to remove the all variables along with the application state, then we have to write the application.remove all method. It will remove all the variables, or we can say all the variables we allocate in application state. Yes, or by using the application variable, that all variables are going to be removed. Okay, that application state management is not going to remove. Yes, उसके अंदर जो भी वैल्यू रहता है वो कभी रिमूव नहीं होता है जब तक अगर हम एप्लीकेशन को शट डाउन भी कर दें या वी कैन से सर्वर शट डाउन भी हो जाए तब भी ये एप्लीकेशन वेरिएबल रिमूव नहीं होगा. इट विल प्रेजेंट इन द मेमोरी. ओके, नाउ okay, we have two events which are globally available in the global file, because application state is the global we can say state management option. Yes, and it will available throughout the website. जितने भी सारे वेबसाइट के अंदर पेज अवेलेबल होंगे वो सारे पेजेस के अंदर एप्लीकेशन वेरिएबल का हम एक्सेस कर पाएंगे या एप्लीकेशन वेरिएबल को हम सेट कर पाएंगे. यस, लेकिन अगर हमें ग्लोबली कोई भी सेटिंग करना है एप्लीकेशन स्टेट वेरिएबल के अंदर, देन वी हैव टू गो इनसाइड द global file, global.asax file, and that particular file we have two method. First one is the application underscore start and second one is the application underscore end. Okay, ये application underscore star event कब trigger होगा? When we have a application start. If you want a code to be execute as the application start, you should add the code inside the application underscore start event. This code is only trigger when application start, and it is not triggered again and again until the IIS is stopped. Yes, global.asax file is modified or the application is unloaded. Yes, so इन सारे केसेस के अंदर इन सारे केसेस के अलावा ये एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट वी कैन से ट्रिगर नहीं होगा. यस, अगर ये कोई भी केस है तभी ये एप्लीकेशन स्टेट ट्रिगर होगा, अदरवाइज नहीं. कब कब ट्रिगर होगा एप्लीकेशन इवेंट? जब हमारा आईएस स्टॉप हो जाएगा. यस, ग्लोबल फाइल के अंदर हम कुछ चेंज करेंगे, अदरवाइज और वी कैन से एप्लीकेशन अनलोड हो जाएगा. यस, और फिर से स्टार्ट होगा तो ये इवेंट अगर होगा, अदरवाइज ये इवेंट अगर नहीं होगा. एप्लीकेशन अंडरस्कोर एंड इवेंट कब अगर होगा? That it will trigger when an application ends. Yes, application state and synchronization. Yes, new topic is application state and synchronization. That we can synchronize our thing. Yes, by using the lock and unlock method. So inside the lock method we lock the application variable, and by using the unlock method we unlock the application variable, and by using this we can synchronize our thing. Yes, हमें जो भी synchronize करना है या जो भी operation perform करना है, that we can perform between the lock and unlock method. Okay, here we have some kind of example like that if we want to count the page counter or we want to implement the page counter, then we use the application.lock and application.unlock. Okay, for that we use the if condition. If application page counter is nothing, यानी कि इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, then we have to set the application page counter variable is equal to 0. Yes, ये क्या है?
इट इज अ वेरिएबल नेम। और ये क्या है, स्टेट मैनेजमेंट और वी कैन से ग्लोबल कीवर्ड, यस, जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन स्टेट को सेट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल है और वी कैन से ग्लोबल थिंग है और वी कैन से कीवर्ड है। और ये क्या है, वेरिएबल नेम है। आप कुछ भी दे सकते हो वेरिएबल नेम डबल कोट्स के अंदर, यस। और यहाँ पर एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा है, एप्लीकेशन पेज काउंटर इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू int 32, यस, यानी कन्वर्ट टू इंटीजर पेज काउंटर +1, यानी कि प्रीवियस पेज काउंटर +1 होगा यहाँ पर। तो हर एक टाइम 1 + 1 होता जाएगा और आपका नंबर ऑफ टाइम विजिटेड इंक्रीज होता जाएगा, यस। एंड वी हैव अ रिस्पॉन्स डॉट राइट, और ये जो हमने पेज काउंटर यहाँ पर है वो उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर, यस। एंड डिफ कर लेते हैं एंड एप्लीकेशन डॉट अनलॉक। सो इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन वेरिएबल अनलॉक हो जाएगा, इससे लॉक होगा और इससे अनलॉक होगा। सो वी कैन सिंक्रोनाइज द थिंग। Now, what are the advantage of the application state? That first one advantage is what? It is easy to use and it will consistent with the other .NET framework classes. Yes. So पहले तो ये easy to use है, इसका बड़ा एडवांटेज हो गया। और .NET framework के हर एक क्लास के अंदर we can say consist रहेगा, या उसका जो what we can say that type है या जो value है वो consistent रहेगा, yes, change नहीं होगा। Another advantage is what, that storing the information in the application state involves maintaining only single copy of information, yes। यहाँ पर single copy of information ही generate होगा, yes, multiple copy generate नहीं होगा। So we can what we can say single copy of information यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या हो जाएगा, that data store in application state is lost when web server containing the application state fails due to the server crash, upgrade और shutdown। yes, ये तीन स्टेट के अंदर हमारा एप्लीकेशन वेरिएबल क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू लॉस्ट हो जाएगा। कब, एक तो सर्वर क्रैश होगा तब, या सर्वर अपग्रेड होगा तब, या सर्वर शटडाउन होगा तब, यस। सेकंड लिमिटेशन क्या है, इट रिक्वायर्स द सर्वर मेमोरी, एंड सर्वर के अंदर मेमोरी चाहिए, एंड कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्वर एंड स्केबिलिटी ऑफ द वेब एप्लीकेशन। यस, सर्वर के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है ये एप्लीकेशन स्टेट वेरिएबल। Now let us see the example. I taken the previous form that in which we set all kind of variables. Yes, तो उसके अंदर ही मैंने ये दो वेरिएबल ले लिए हैं, that is the set application variable and second one is the get application variable। ये दोनों बटन लिया है, उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने लिखा है एप्लीकेशन, ये हमारा कीवर्ड है ब्रैकेट के अंदर, एप्लीकेशन नेम, सॉरी वेरिएबल नेम, दैट इज emp नेम, यस। और emp नेम मैंने क्या दिया है, abc, और यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया है, रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर ये प्रिंट करवा दिया है। सेम वे जो आपको पेज काउंटर वाला मैंने कोड दिखाया था, डेट वी हैव टू राइट इनसाइड द पेज लोड इवेंट। कहां पर लिखना है, पेज लोड इवेंट में ही लिखना है, क्योंकि जब पेज हमारा फर्स्ट टाइम लोड होगा तब जाके ये इवेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये इवेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यस, नाउ लेट अस रन दिस कोड। ओके, पेज को हम रीलोड करते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन वेरिएबल 1 सेट होगा, वापस से हम रीलोड करेंगे तो 2 सेट होगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक ये अपने हिसाब से बढ़ता जाएगा। सो ये क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ टाइम हमारा पेज रीलोड हो रहा है या वी कैन से विजिट हो रहा है तब तक ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। यस, ये पेज लोड के अंदर लिखा है तो ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी सेट एप्लीकेशन वेरिएबल देखते हैं, यहां पर हमने सेट कर लिया, गेट करेंगे
तो इसका वैल्यू इसके बाजू में गेट हो जाएगा, डेट इज द एबीसी। यस, अभी ये 14 और ये सब कुछ पेज लोड हो रहा है या एक ही पेज बार बार